Alhamdulillah, Alhamdulillah, by the grace of Allah, we have finally reached the mid of our course. Today is the 12th day of English Marathon, batch number 4, 2024 from College of English, right? So today is the midday of our classes. Like in total, we are having 24 days and today is the 12th day. So I really congratulate all of you who have covered this much journey of English languages with us. Thank you so much. Okay, now आज के जो topic it's very interesting. Okay, and it is the most I must say it's a kind of a most important topic for all of us, right? Because all the time when we are talking in English, we need to show our abilities and capabilities. Okay, so the word or the model which we're doing today will help you in explaining that ability properly, right? So today's in the 12th day of English Marathon, inshallah ta'ala, we will be covering can, could, and will, right? So everybody's ready and everybody's excited. Okay. Okay, so this is the recalling section. Okay, if you get time, we'll recall it at the end. But you see, superficially, I'm telling you that in our last class, we did the subjective case of the pronouns. It means I, we, you, they, she, he, it. Okay, and the objective case means when the noun comes at the last of the session, in the last of the sentence. For example, us, them, her, his, is like that. Then we did possessive adjectives and possessive pronouns, and we have deeply discussed the difference between the two. Then we did the reflex pronouns. Reflex pronouns are those pronouns in which we have a self word in the end, and it is mostly used for emphasize, right? To emphasize something. And we also did the WH questions. WH questions, they are basically 5 most important W's, WH, like what, where, when, which, why, and who. Okay, and you can also add whom, with whom, to whom, and who's also in this category. Similarly, how is also a part of WH questions. Like from how we can make a lot of questions, like how many, how much, how far, how old, how long, how often. How many basically is for asking about quantity of something, right? Like countable things. How much is used for uncountable things, right? And I want some water, I don't have any money. Okay, so it's like that. Then we have got how far. How far is basically used to tell distance or time. Okay, or you sometimes you can also say your strength. And how old means obviously it is related to age or time. How long, length, how often, frequency. Okay, so this was a small kind of revision what we did in our last class. So now we are moving ahead towards further new tech. So what are your talent? Okay, in this slide, basically talents means something which you can do better than others. ओके, टैलेंट हम किस चीज को कहते हैं? जब आप कोई चीज जो है दूसरों से बेहतर कर रहे हो, तो दैट इज बेसिकली नोन एज योर टैलेंट. ओके, सो यू कैन से आई कैन रीड फास्ट, आई कैन राइट ब्यूटिफुली, I can draw beautifully, I can cook very scrumptious and delicious food, yummy food, I can run very fast, I can walk you see for long you must say the like I can walk too much, or I can walk fast, or I can walk for very long time. Then you jump, I can jump high, climb trees, sing, dance, skate, roller skate, swim, ride a bike, ride a motorbike, right? So these are all your talents, and they simultaneously are known as your abilities, right? Abilities भी आप इसको कह सकते हैं और अपना talent भी कह सकते हैं. Now, for today's vocabulary section, okay, I would like to invite, we'll start with Muqaddas, because mashallah, Muqaddas is always the first to enter the class. I would like to start my session with Muqaddas. Okay, Muqaddas, please unmute yourself and read the vocabulary for us. Yes. Beneath, neck, Be louder. Be louder. beneath, neck, dalma, kashmakash, ignorant, No. perjure, Why you are not reading? Why you are not reading the meanings here? Why not reading the meanings? Meanings क्यों नहीं पढ़ रहे हो आप? Meanings भी लिखा है ना? yes. Then why you are not reading the meanings? Meanings के बगैर आपको vocabulary कैसे समझ में आएगी कि आप क्या पढ़ना चाह रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो? ठीक है, चलिए पढ़िए. Beneath, neck, dalma, kashmakash. No, it's not dharma. Ignorant. It's dilemma. Dilemma. Dalma. Yes. You see, Kashmakash. जी.
आगे चलिए. exuberant, perjosh, No, is exuberant. Exuberant. exuberant, Yes. perjosh, Yes. mammoth, Ephemeral. Ephemeral. arzi, हाँ, yes. Ephemeral RZ. Very good. आगे चलिए. Elicit. 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 disdain, Elicit. elicit, Okay. निकालना, जी. disdain, Very good. हकारत, discern, समझना. समझना, Very good. dawn, खौफनाक. Okay, okay. Now I would like Miss Wajia. Please, Wajia, read the vocabulary with meanings, then we'll do further practice. Please. बेचिंग. No, 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 no. बिल्कुल पिचिंग नहीं. अभी इन्होंने क्या पढ़ा था? आप सुन नहीं रहे थे? इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या थी? उनकी आवाज ही नहीं है. अच्छा अच्छा, ठीक है. जैसे 9 होता है ना, 9, बिनाइन. ओके. ठीक है, बिनाइन. जी इसमें साइलेंट है. ये जो IGH वर्ड्स होते हैं ना, ये वैसे ही बहुत, ये OGH वर्ड्स ये बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं. इनकी साउंड्स बहुत सारी होती है फोनेटिक उसमें. तो ठीक है, इसको आप सिंपल याद रखो. जो अल्फाबेट है ना, जो नंबर है 9, बिनाइन. जी. ठीक है, चलो. ओके. बिनाइन, नेक, डिलीमा, कशमकश, एक्सबरेंट, पुरजोश, एफिमेरल, नो नो आरजी, नो 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 नो, इससे पुरजोश वाले को दोबारा पढ़िएगा वर्ड प्लीज वजिया. एमिमिरल, नो नो एफिमेरल, नो नो नो, उससे पुरजोश वाले की पूछ रही हूँ मैं डियर. दिस वन. एक्सब्रेंट, Exuberant. Exuberant. एक्सुबिरेंट, Yes, exuberant. और ठीक एक्सुबिरेंट, है, आगे. जोश, आगे पढ़िए. एम्पिमिरल, एफिमेरल. एम्पिमिरल, आरजी, नो नो नो, देखिए पीएच जो होता है ना भजिया, ये फी की आवाज देता है. ठीक है, फोन. ठीक है, फोन. फिनोमिना. ठीक है, तो ये एफिमेरल. एफिमेरल, यस. एफेमेरल, आरजी, एलिसिट, निकालना, डिस्डाइन, डिसडाइन हकारत, नहीं है, इट्स नॉट डिसडाइन, डिसडेन. डिस्डेन, डिस्डेन, हकारत, डिसर्न, समझना, डोंट, खौफनाक. खौफनाक. ठीक है जी. अब थोड़ा सा और कौन है क्लास में हमारे साथ जो हमें वोकैबुलरी कर सकती हैं? हु इज दिस एनटेक? प्लीज रीनेम योरसेल्फ एनटेक, वरना मैं आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दूंगी क्लास में. जी इकरा, अनम्यूट कीजिए अपने और ये सारे वर्ड्स पढ़िए. क्विक क्विक. एनटेक, प्लीज रीनेम योरसेल्फ. benign, वेरी नेक, गुड. dilemma, कश्मकश, वेरी गुड. exuberant, वेरी गुड. पुरजोश, ephemeral, नो नो नो, arzi, एफिमेरल. ephemeral, एम्फी नहीं, एफी. ephemeral, arzi, ephemeral, arzi, elicit, निकालना, वेरी गुड. disdain, हकारत, discern, समझना, daunt, खौफनाक. Very good. Okay, now it's the turn of Dua. Dua, please unmute yourself. Dua Fatma. अस्सलाम मैम. वालेकुम अस्सलाम बच्चा. जल्दी से फटाफट वोकैबुलरी वर्ड्स पढ़िए विद मीनिंग. D9 नेक, मैंने क्या लिखा है? डी जी जी, कोशिश करें, शाबाश. डिले मैम, डिलेमा, जी जी, ठीक है. डिलाइमा. डिलेमा, कश कश कशमकश, जी. एक्सुबिनेंट, एक्सुबिनेंट, नो, एक्सुबिनेंट का, एक्सक्यूज मी पुरजोश. दुआ, एक्सुबिनेंट का लिखा, ये आर है. एक्सुबिरेंट. यस, एक्सुबिरेंट एंड एक्सुबिएंट, पुरजोश. एक्सुबिरेंट. रेंट रेंट. रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट के आखिर में भी आर एन टी Yes. आता है ना. रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट. एक्सुबिरेंट. जुबिरेंट, पुरजोश. शाबाश. इफ यस, एफिमेरल. एफ एफिमिलर, आगाज, आरजी. सॉरी, आगाज, आगाज कहाँ लिखा है? आरजी. सॉरी मैम, एग्जैक्ट, नक नक
ephemeral, निकालना, ephemeral, ephemeral, जी, as arzi, arzi, or exant, no, illicit, 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 निकालना, बेटा सेंड नहीं है दुआ, illicit, illicit, सिंट, एन illicit, की निकालना, दुआ, दुआ बेटा एन की आवाज क्यों निकाल रहे हो मेरा बच्चा, एन नहीं है, illicit, sit, illicit में, sit, sit, S C, illicit, no, sit, Sit. CIT, sit, illicit, 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 वेरी गुड, illicit Illicit. मतलब निकालना, चलें, निकालना, dis, distant, disdain, ओके, हकारत, हकारत, ठीक है जी, distant, यस, discern, distant, जी, discern, समझना, और ड- don't, down, down नहीं, don't, Half-nack. Hofnack, ठीक है जी, ये डरा हुआ, okay जी, who is this N-tag, please unmute yourself, tell your name and then start reading the vocabulary, quick, हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही डियर, प्लीज स्पीक अप, we can't hear you, हेलो मैम। हाँ, now it's better, what's your name dear, मैम ईशा हमसे रीनेम नहीं हो रहा है। आप मुझे नाम बताओ अपना, मैम ईशा। ओके ईशा, ठीक है, मैं आपको रीनेम कर दूंगी, आप ईशा अपना कीजिए, बिनाई मीनिंग नेक, डेलिमा कशमकश, एक्सुबरेट परकश, exuberant, no, exuberant, एक्सुबरेंट परकश, एम्फीफिल पुरजोश, exuberant, पुरजोश, पुरजोश, एम्फीफिल आरजी, ephemeral, एफिमेरल आरजी, एलिसिट निकालना, डेसिडाइन हकारत, disdain, डिसडेन हकारत, डेसिक्रेन समझना, discern, concerned होता है ना, उसी तरह discern, डिसर्न समझना, डाउट खौफना, don't, खौफना, don't पढ़ेंगे से don't, डोंट ओके, don't नहीं, down, मुझे भी आपने dauntless, डोंट ठीक है, don't, okay जी, so this was the vocabulary for today, now we'll be doing detail पोस्टमार्टम करेंगे इस vocabulary का, पहली जो आपके पास जो वर्ड है वो है benign का, ठीक है, benign is it, I think this word might be seems a bit new to all of you, but it's a very good word, okay, and you see जो आपका ये जो word है benign, इसका मतलब होता है नेक, harmless, gentle, ठीक है, आप इसको क्या कह सकते, अच्छा ये जो है मेडिकल टर्म में भी यूज होता है ये वर्ड बहुत ज्यादा, ठीक है, और किस सेंस में यूज होता है कि कुछ आपके पास बैक्टीरियाज या कुछ आपके पास ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि नुकसानदेह नहीं होते, तो हम उनके लिए भी ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा आप जैसे कह सकते हैं कि बहुत सारे, जैसे द डॉक्टर सेड दैट द ट्यूमर वाज बिनाइन सो नो ट्रीटमेंट वाज नीडेड, यानी डॉक्टर ने कहा कि ये बेसिकली नेक से मुराद यहाँ पर है हार्मलेस, जो किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, ठीक है, सो द न्यू पॉलिसी has had a benign impact on the community, यानी पे उसका कोई असर जो है, ये बुरा असर जिसे आप कह सकते हैं, वो उस पे नहीं पड़ा, ठीक है, बिनाइन का मतलब फिर से गौर से समझ लीजिए, हार्मलेस, जेंटल, फेवरेबल, बेनिफिशियल इफेक्ट, फायदेमंद चीज, इसीलिए इसको नेक या अच्छे के सेंस में लिया गया, ठीक है, देन द नेक्स्ट वर्ड व्हिच वी हैव इज डिलाइमा, डिलाइमा का मतलब आपके पास क्या होता है, इसका मतलब आपके पास होता है कश्मकश, ठीक है, कश्मकश, यानी कि आप किसी चीज में वो नहीं कर पा रहे, फैसला नहीं कर पा रहे, तो हम कहते हैं यू सी आफ्टर हिज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी की लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं कि एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ she is in dilemma, a situation in which it's a difficult choice has to be made between two or more alternatives, okay, often conflicting consequence, जैसे फॉर एग्जाम्पल शी फेस्ड अ डिलेमा, ईदर क्विट हर जॉब और मूव टू अ न्यू कंट्री, जो कि हमारे ज्यादातर नौजवान नस्ल का जो मसला है
कि वो सोचते हैं कि पाकिस्तान में ही रहें और आगे पढ़ लेते हैं, या फिर हम बाहर मुल्क चले जाएं। दे हैव टू ऑप्शंस, ठीक है। सिमिलरली आप कह सकते हैं कि द डॉक्टर फेस्ड अ मेडिकल डिलेमा व्हेन द पेशेंट्स ट्रीटमेंट ऑप्शंस वर ऑल रिस्की। डॉक्टर को ये फैसला करना बहुत मुश्किल था कि हम पेशेंट के लिए कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करें, क्योंकि सब प्रोसीजर उसके लिए क्या नजर आ रहे थे, मुश्किल नजर आ रहे थे, ठीक है। तो अब मुझे जरा चैट बॉक्स में आके बताइए कि डिलेमा क्लियर हुआ है सबको या नहीं। एंड आई वांट टू यू सी एवरीबॉडी टू मेक अ सेंटेंस ऑन दिस। चले जी, चले वजिया, मेक अ सेंटेंस, डिलेमा का जुमला बनाइए। जी वजिया। वजिया, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ बच्चा? I think Vijaya is unable to unmute herself, so we can go to Isha. Isha, बेटा unmute कीजिए अपने आप को. I want the sentence of dilemma. It's a very good word. क्या आप लोग को अनम्यूट करने में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? ईशा नो मैम। जी प्लीज डिलेमा का जुमला बनाइए। मैंने आपको क्या मीनिंग बताई, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई फैसला लेना बहुत मुश्किल हो रहा हो, ठीक है ना। मैम इसके अंदर हम इस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स के अंदर भी बना सकते हैं ना। अच्छा चलिए मैं आपको उर्दू में एक सेंटेंस दे रही हूँ, आप उसका इंग्लिश बनाइए, ठीक है। मैम हमने हम ये बोलना चाह रहे हैं the insoluble dilemma of alcohol। नहीं अल्कोहल का डिलेमा का, डिलेमा का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिंदगी में, ऐसी कश्मकश कि यार मैं ये करूं कि ये करूं, जब आप फैसला नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह कह सकती हैं कि जैसे ही वॉज इन अ डिलेमा अबाउट द सीक्रेट वेदर टू टेल द ट्रूथ और कीप द सीक्रेट। यानी वो इस कश्मकश में था कि क्या मैं सच बोल दूं या खामोश रहूं। मैम our dilemma is a tough choice। I didn't get your sentence, please repeat, Miss Isha. मैम हम बोलना चाह रहे हैं our dilemma is a tough choice। नहीं, दो चीजों के बीच में चॉइस होगी ना, तो आपने टॉप चॉइस तो दे दिया, दूसरी चीज क्या है जिसमें आपको कश्मकश हो रही है? मैम जैसे आपने बोला था हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह, तो अच्छा उसके ईशा, बाद आप एक काम कीजिए, ईशा आप ये बोलिए कि मैं इस चीज की कश्मकश में हूं कि आगे पढ़ाई जारी रखूं या फिर शादी कर लूं। our dilemma is a tough choice। आई डिलाइमा तो नहीं, नो नो नो, आप इसको बोलेंगे our dilemma आई एम इन डिलाइमा I am वेदर in dilemma। वेदर टू, अब जो वेदर टू के बाद आप जो दो सिचुएशन है वो रखेंगे। I am dilemma of whether or not आई एम इन डिलाइमा I am in dilemma of whether or not to return and not to return to his नहीं ओके देखो सिंपल सिंपल, to his डोंट, study। ये एक बहुत ही अच्छा रूल होता है इंग्लिश का, दैट इज कॉल्ड किस, KISS, कीप इट सिंपल। I don't want to say the last one, but it is keep it simple, stupid. That was, I was just kidding. तो कहने का मकसद है अपने सेंटेंस को बहुत ज्यादा सिंपल रखिए। He was in dilemma whether to marry or to go abroad. She was in dilemma whether to return that purse she has found in the evening on the road to the to the owner or not. डिलाइमा का मतलब तो कश्मकश आप लाइफ में नहीं होती। आई एम इन द डिलाइमा वेदर टू ईट एट होम और टू गो इन टू अ रेस्टोरेंट। मैं कश्मकश में हूँ कि रेस्टोरेंट में खाना खाने जाऊँ या यहाँ पे खा लूँ, ठीक है। ओके ठीक है जी। अब मैं नेक्स्ट वर्ड है मेरा एक्सूबिरेंट। एक्सूबिरेंट जो है बेसिकली खुशी के सेंस में आता है। व्हेन यू जब आपको किसी चीज में कामयाबी होती है, पुरजोश होते हैं, तो हम उसके लिए यूज करते हैं एक्सूबिरेंट, राइट। द चाइल्ड वाज वेरी एक्सूबिरेंट आफ्टर सिक्योरिंग
फर्स्ट पोजीशन इन द रेस। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक्सुबेरेंट। फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है एफिमेरल। एफिमेरल भी याद रखिए, बहुत बहुत अच्छा वर्ड है एंड इट इज यू सी सेलिब्रिटीज वगैरह ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं एफिमेरल। ठीक है, एफिमेरल का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि क्या हो, टेम्परेरी हो, ऐसी चीज जो कि क्या हो, टेम्परेरी हो। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है, और टेम्परेरी या फ्रेजाइल हो, डेलिकेट हो, कुछ भी आप कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह कैसे, द लाइफ ऑफ अ बटरफ्लाई इज एफिमेरल लास्टिंग ओनली अ फ्यू वीक्स। जो बटरफ्लाई की जिंदगी है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा मुख्तसर है। द क्लाउड फॉर्मेशंस वर एफिमेरल चेंजिंग शेप एंड डिसअपियरिंग रैपिडली। जो बादल जो थे वो लग रहा था कि बारिश हो जाएगी, लेकिन वो बहुत आर्जी थे और फौरन ही क्या हुआ, मौसम साफ हो गया। ठीक है, यू कैन ऑल्सो से दैट द snowflakes beauty was ephemeral melting away in the hot season or due to temperature। ठीक है, एफिमेरल का मतलब क्या है, आरजी। आप कह सकते हैं अवर लाइफ इज एफिमेरल वी शुड डू गुड डीड्स, हमें अच्छे काम करने चाहिए, हमारी जिंदगी आरजी है, खत्म हो जाएगी। ठीक है, देन वी हैव गॉट इलिसिट। आप ये भी कह सकते हैं द फेम, फेम इज बेसिकली एफिमेरल। शोहरत जो होती है वो क्या होती है, आरजी होती है। देन वी हैव इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है निकालना। अच्छा, इलिसिट जो है ना, इसमें थोड़ी सी एक इस तरह का मामला है कि इलिसिट से मुराद, निकालने से मुराद, अब यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं, निकालने से मुराद यहाँ पे बोला निकालना नहीं कि आपने उसको कमरे से निकाल दिया तो वो जो है ना आपने वो कर दिया उसको। ठीक है, ये कमरे वाला निकालना नहीं है। बेसिकली इसका मतलब होता है किसी के अंदर से कोई राज या कोई बात वो निकालना। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कि हम जो है क्या कर रहे हैं, इलिसिट करें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस देती हूँ, उससे यू विल डेफिनेटली श्योरली गेट हेल्प। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी चीज में कोई चीज जगाने को भी हम इलिसिट कहते हैं। ठीक है, द टीचर्स क्वेश्चन इलिसिटेड अ लवली डिस्कशन फ्रॉम द स्टूडेंट। यानी कि टीचर की जो बात थी, जो उससे टॉपिक छेड़ा था, उससे क्या हुआ, सारे बच्चे अपनी बातें शेयर करना शुरू हो गए। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं द सर्वे एम टू इलिसिट ऑनेस्ट फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट। यानी कि जो सर्वे किया गया था, सर्वे समझते हैं ना, एक घर घर जाके या हर बंदे से पूछना कि आप प्रोडक्ट के बारे में क्या कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जो आपका सर्वे था वो किस लिए बनाया गया था, किस मकसद से, ताकि लोगों से ऑनेस्ट फीडबैक लिया जा सके कि वो प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर क्या सोचते हैं। यू कैन ऑल्सो से द अरोमा ऑफ freshly baked cookies elicited a warm feeling of नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया से मुराद क्या होता है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल किसी को याद करते हैं ना पुराने उसको, तो कह रहे हैं वो मीठी मीठी। समटाइम्स आप होते हैं ना किसी के घर बैठे होते हैं और बहुत अच्छे खाने की खुशबू होती है, तो आप कहते हैं यार यू सी मुझे अब मेरी मदर याद आ रही है। ठीक है, तो कोई चीज प्रोवोक होना, किसी चीज को इसके लिए किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करना, इन सब के लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है इलिसिट, राइट। देन यू हैव गॉट डिस्डेन। डिस्डेन का मतलब क्या होता है, हिकारत। हिकारत से मुराद यहाँ पे कौन सी हिकारत है, हिकारत से मुराद है टू लुक समबडी यू सी नॉट विद गुड, आप इंटेंशंस कह सकते हैं, या किसी को जो है ना वो समझना, नीचा समझना। हिकारत आप लोग उर्दू में समझते हैं ना, हिकारत का मतलब क्या है। ठीक है जी, तो हिकारत हो गया आपका। और फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस में आपको बता देती हूँ फॉर डिस्डेन। ठीक है, डिस्डेन के लिए हमारे पास सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल it is basically like she looked at him with disdain, clearly unimpressed by his arrogance। यानी कि वो जो इतरा रहा था उसको देख के वो लड़की बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं और उससे बहुत हिकारत से उसको देखा। ठीक है, इसके अलावा आप ऐसे कह सकते हैं द वेल्दी इलीट शोड डिस्डेन फॉर द स्ट्रगल्स ऑफ द वर्किंग क्लास। जो अमीर लोग होते हैं, वो जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनको क्या करते हैं, हिकारत की नजर से देखते हैं या हकीर समझते हैं। ठीक है, देन वी हैव गॉट नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो स्क्रीन पर है वो बेसिकली आपका क्या है, डिसर्न। जैसे आप कंसर्न पढ़ते हैं ना, कंसर्न, ये उसी का CON हटा के आप उसके आगे जब डिस लगा देंगे तो दिस विल बिकम डिसर्न। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज से डिटैच हो जाना, किसी चीज को समझना, टू कीप बहुत ज्यादा गहरी बात वो करके समझना। फॉर एग्जाम्पल जैसे शी कुड डिस्टेन द, देखिए एक तो होता है ना कि आपसे मैं कुछ बात बोल रही हूँ, लेकिन एक ये क्या हो कि आप मुझे देखते कहें आज मिस खुश नहीं नजर आ रही है, आज मिस बहुत ज्यादा खुश है, आज मिस बहुत। ठीक है, तो ये जो होती है ना, ये चीज क्या होती है, ये डिसर्न कहलाती है। ठीक है, after careful consideration she was able to discern the best course of action। okay, the artist's use of color and light helped discern the mood of the painting। ठीक है, समझाने में उसने क्या किया, हेल्प किया।
ठीक है। तो इस तरह की जो हम वर्ड्स होते हैं उनके लिए फिर लास्ट हमारे पास जो है वो डोंट है। डोंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा डरा हुआ होना, सहमा होना, खौफनाक होना। ठीक है, ये मैंने आपको डोंटलेस में शायद आई थिंक आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कि आपके बैच को मैंने करेजियस के सिनोनिम्स कराए हैं या नहीं। उन सिनोनिम्स में आपके पास ये डोंट होता है, डोंटलेस, खौफ, बेखौफ। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस। आज काफी डिटेल में हमने वोकैबुलरी कर लिए। अब हम फ्रेजेस की तरफ आ रहे हैं। आज के फ्रेजेस बहुत इजी हैं एंड बहुत जिसे कहते हैं कि नॉर्मल उसमें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इकरा, इकरा बेटा आप मेरे लिए दो फ्रेजेस प्लीज रीड कीजिएगा विद ट्रांसलेशन। इकरा। Okay, ma'am. Time and again, I have told you not to repeat the same mistake. बार बार मैंने आपसे कहा है कि वही गलती ना दोहराएं. I वेरी have गुड। heard many evil things about him. He is bad to the bone. मैंने इसके बारे में बहुत सी बड़ी बातें, बुरी। बुरी बातें सुनी है. वो बहुत अच्छा, बुरा है. अच्छा ये प्लीज इकरा ये सेंटेंस दोबारा पढ़ो, सेकंड वाला डियर। I have heard नो many इट्स नॉट हेयर्ड, evil things नो इट्स नॉट हेयर्ड, इट्स हर्ड। I've heard heard. about you. Have you heard about me? क्या तुमने मेरे बारे में सुना है? ठीक है, Heard, heard. ठीक है, I heard. I have heard many evil things about him. He is bad to the bone. ओके वेरी गुड, ठीक है जी। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट वाले जो है मुकद्दस, आप पढ़िए एक जुमला प्लीज यार, नेक्स्ट वाला। She has nervous of steel to नो go through नर्वस नहीं her लिखा हुआ, ये नर्वस नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है मुकद्दस? nervous नो इट्स नॉट नर्वस। नर्वस तो OUS होता है, नर्व्स। nerve of steel to go through her child's death and not cry. वो ओके अपने बच्चे की मौत से गुजरने और रोने की हिम्मत रखती है। वेरी गुड, ठीक है जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने सेंटेंस। ठीक है जी, वजीहा, वजीहा लास्ट सेंटेंस पढ़ेंगी प्लीज आप हमारे लिए। लास्ट वन वजीहा। वजीहा यू आर नॉट ऑडिबल। Hello. जी जी, आप अब आपकी आवाज आ रही है। वजीहा लास्ट सेंटेंस रीड करेंगे विद ट्रांसलेशन फॉर अस। You you are Jack of all trades. You cleaned the room and made dinner for us. तुम सब कुछ जानते हो. तुमने कमरा साफ किया और हमारे लिए रात का खाना बनाया. वेरी गुड। अच्छा अब देखिए बड़े मजे मजे के हैं ना आज के। टाइम एंड अगेन का मतलब होता है बार बार एक ही चीज को बार बार करना। ओ माय गॉड, यू मेक द सेम टाइम एंड अगेन। बार बार तुम एक ही गलती कर रही हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? टाइम एंड अगेन आई हैव टोल्ड यू नॉट टू रिपीट द सेम मिस्टेक। मैंने बार बार तुम्हें, हम उर्दू में कहते हैं ना बार बार, बार बार क्यों फोन कर रही हो? व्हाई यू आर कॉलिंग मी टाइम एंड अगेन? व्हाई यू आर टीजिंग मी टाइम एंड अगेन? बार बार क्यों तंग कर रही हो? ठीक है, वाई यू गोइंग टू शॉपिंग टाइम एंड अगेन? तुम बार बार शॉपिंग के लिए क्यों जा रही हो भाई? ठीक है, तो इस तरह आप इसको इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव बेड टू द बोन। बेड टू द बोन का मतलब है कोई जो है बहुत ज्यादा बुरा हो तो हम उसको कहते हैं ही इज बेड टू द बोन, यानी कि उसकी जो बुराई है ना, उसकी जो एविलनेस है वो उसकी हड्डियों की गूदे तक में, मेरे बोन मैरो में घुस चुकी है। तो हम क्या कहते हैं? बैड टू द बोन्स। आई हैव हर्ड मेनी एविल थिंग्स। एविल मतलब बुराई है ना, शैतान के लिए भी एविल का वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई हैव हर्ड मेनी एविल थिंग्स अबाउट हिम। मैंने उसके बारे में बहुत बुरी बातें सुनी है। ही इज बैड टू द बोन्स, वो तो बहुत ही बुरा है। यू सी मदर, आई डोंट वांट टू मैरी दिस गाय, आई हैव हर्ड दैट ही इज बैड टू द बोन्स। मैं इस आदमी से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैंने सुना है कि ये बहुत बुरा है। ठीक है, माई सिस्टर इन लॉज हस्बैंड इज बैड टू द बोन्स, ही समटाइम्स ऑल्सो बीट्स हर। ठीक है, यानी कि वो इतना बुरा है कि कभी वो हाथ भी उठा लेता है उनपे। ठीक है, देन वी हैव गॉट नर्व्स ऑफ स्टील। ये बड़ा जबरदस्त है, ये यूज किया जाता है मजबूत लोगों के लिए। कहते हैं ना मदर्स, मदर्स आर द नर्व्स ऑफ स्टील। मदर्स हैज नर्व्स ऑफ स्टील। क्यों? ऑल द मदर्स हैव नर्व्स ऑफ स्टील ऑल द टाइम, बिकॉज वो हर वक्त अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, उनके लिए
हिम्मत रखती हैं, ठीक है। नर्व्स ऑफ स्टील का मतलब होता है कोई जो बहुत ही बाहिम्मत होता है, किसी बहुत मुश्किल सिचुएशन में भी वो क्या करे, अपनी उसको ना छोड़े, हिम्मत को। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें सेंटेंस में दिया हुआ है, शी हैज नर्व्स ऑफ स्टील टू गो थ्रू हर चाइल्ड्स डेथ एंड नॉट क्राई, यानी वो अपने बच्चे की मौत के उससे गुजरी लेकिन फिर भी वो रोई नहीं, वो इतनी ज्यादा क्या है, हिम्मत रखती है, ये हिम्मत वाली है, ठीक है। लास्ट में जो आपके पास अंडरलाइन इज बेसिकली जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब होता है हरफन मोला, जैसे हम उसमें उर्दू में बोलते हैं ना अरे भाई ये तो हरफन मोला है, ये तो सब कुछ कर सकती है, शी इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है। तो यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यू क्लीन द रूम एंड मेड डिनर फर्स्ट, तुम सब कुछ जानते हो, यानी कि तुम हरफन मोला हो, तुमने कमरा भी साफ किया और हमारे लिए खाना भी बनाया, ठीक है जी। तो नाउ आई वुड लाइक सब जो है अपनी पसंद का कोई एक सेंटेंस मुझे बताएं। विल स्टार्ट विद दुआ। दुआ, कोई सा भी एक वर्ड लीजिए, उसका सेंटेंस बनाइए, क्विक क्विक सिंपल सेंटेंस होने चाहिए। Yes. My friend is called time and again. माय फ्रेंड इज, Called time and again. माय फ्रेंड कीप्स मी कॉलिंग टाइम एंड अगेन, मेरा दोस्त मुझे बार बार फोन करता रहता है, ऐसे ही बोलना चाह रही है दुआ। Yes, ma'am. ओके चलिए, थैंक यू थैंक यू। ओके ईशा। जी ईशा। Again, time and again we hear this a promise from a politician. थोड़ा प्लीज लाउडर बोलेंगे ईशा, वी कांट हियर यू। Time and again we hear this promise from teacher या politician. हियर क्या, Hear this promise. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। द पॉलिटिशियंस कीप ऑन मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस टाइम एंड अगेन, बार बार जो होते हैं सियासतदान वो क्या करते हैं, गलत वो करते रहते हैं, ठीक है जी। ओके थैंक यू सो मच। वजिया, कम ऑन, सेंटेंस बनाइए वजिया। My mother is jack of all trades. She made crochet all designs. वाओ वाओ अमेजिंग, ओके क्रोशेट के ऑल डिजाइन बनाती, गुड। ओके नाउ वी हैव गॉट इकरा। जी इकरा। Okay, ma'am. She has nerves of steel to swim in deep of river. ठीक है, ओके ओके मुकद्दस। ये हम इमोशंस के सेंस में नर्व ऑफ स्टील मजबूती लेते हैं, ठीक है, एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी के सेंस में नहीं लेते जी। With nerve of steel, she gave a presentation. She gave a Presentation. okay, so okay, ठीक है, thank you very much everybody for participating. I think nobody is left. If anybody is left, they can tell me in the chat box please, because your names are so similar, sometimes I get perplexed with that. Okay ji. Now we are starting with abilities. Can is the beautiful word or beautiful model word which is used to tell about journal ability of somebody. Journal ability से मुराद है आम qualities, for example English बोलना, swimming करना, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको किसी स्पेसिफिक एक्टिविटीज पे ले जाएंगे देन विल नॉट यूज कैन, वो आपकी आने वाली स्लाइड्स में आपको पता चल जाएगा। सब्जेक्ट में बहुत इजी यूज है, सब्जेक्ट है, कैन है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन स्विम फास्ट, एंड नेगेटिव में क्या होगा, आई कांट क्लाइम अप ट्रीज। He can speak 5 languages. He can't speak English well. They can play football. They can't play volleyball. ठीक है। इसी तरह जब आप उसको इंग्लिश में जैसे हमने तमाम सेंटेंसेस में किया था कि जब हम सब्जेक्ट या मॉडल वर्ब को या एक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हियर द सेम थिंग इज हैपनिंग। फॉर एग्जांपल कैन यू स्विम फास्ट, अब ये एक सवाल बन गया कि क्या तुम तेज तैर सकते हो। कैन ही स्पीक 5 लैंग्वेजेस, क्या वो 5 मुख्तलिफ जबानों में बात कर सकता है। कैन दे प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, जर्नल एबिलिटी। रिमेंबर हियर आर सम एग्जांपल्स फ्रॉम जर्नल एबिलिटीज एंड फॉर दिस आई वुड लाइक मुकद्दस, बेटा शुरू के 5 सेंटेंसेस आप पढ़िए। Okay. She can speak Latin. You can ride bikes fast. I can play the piano, but I can't play the guitar. My wife can cook deliciously.
We can learn English from home. Okay, thank you so much, Muqaddas. Thank you. Okay, now दुआ बेटा, आप आखिरी के वो जुमले पढ़िएगा प्लीज. I can't be True, turned true. true. I can't be Be- true. Okay. Can I ask you a question? A Can we question. go for Can I ask you a question? Question. yes, yes. Can I ask you a question? Can we go for a date now? He can single well, but he can can cannot can. मैंने क्या लिखा था? Can He cannot be contraction. He can't. He can sing well, Can. but he can't dance. can't dance. I can understand the word they speak, but I can re- Respond. Respond का मतलब होता है Respond. रद्द अमल, जवाब. respond to them properly. I can go for the in, interviews today. इंटरव्यू टुडे. थैंक यू सो मच मिस दुआ. ओके, ठीक है. तो कैन हमने प्रैक्टिस किया फॉर एबिलिटीज. यू कैन यूज इज कैन इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, यानी जो आपके जिन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस, ये तीनों एक ही तरह के जुमलों का नाम होता है. और ये उन सेंटेंसेस को कहा जाता है जिनमें ना कोई इनकार हो और ना ही कोई सवाल हो. यानी हम जो नॉर्मल जुमले बात करते हैं ये सब अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेशंस होती हैं, यानी इकरार का इनमें फैक्टर होता है. ठीक है, तो ये हमने कैन यानी कि नेगेटिव में भी किया, इंट्रोगेटिव में भी किया और अफर्मेटिव में भी हमने कैन को प्रैक्टिस कर लिया. ओके, नाउ वी हैव गॉट. अच्छा, मैंने अभी आपसे एक बात कही थी कि कैन इज ओनली यूज टू टॉक अबाउट journal ability, but now I'm saying if you want to talk about specific ability, so you don't need to use can. What you will use able to in the present tense, like I am able to swim fast. Okay, she is able to speak Japanese. We are able to stay at nights, study at nights. ठीक है. सिमिलरली नेगेटिव कैसा होगा? नेगेटिव का सेम सिंपल रूल है, पहले वर्ड के बाद नॉट. तो पहला यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड कौन सा है? इज. यहाँ पे एम है, यहाँ पे इज और यहाँ पे आर है. तो इनके बाद हम नॉट लगाएंगे तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा? नेगेटिव. आई एम नॉट एबल टू डाइव. ही इजंट एबल टू स्पीक मैंडरिन. मैंडरिन आपको पता है दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान का नाम मैंडरिन है, राइट? अब तो पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे मैंडरिन सिखाई जाती है. वी आरंट एबल टू स्टडी इन मॉर्निंग्स. हम सुबह में नहीं पढ़ सकते. देखिए हम क्या बात कर रहे हैं? स्पेसिफिक एबिलिटी की बात कर रहे हैं, खास किस्म की एबिलिटी की बात कर रहे हैं. ठीक है, जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आर यू एबल टू स्विम फास्ट? क्या तुम तेज दौड़ सकते हो, तैर सकते हो? इज ही एबल टू फ्लाई टू इंडिया टुनाइट? क्या वो इंडिया जा सकता है आज जहाज के जरिए? आर दे एबल टू प्ले फाइनल मैच? क्या वो फाइनल मैच खेल सकते हैं? ठीक है, तो हमने तीनों उसमें कर दिया. सिंपल फॉर्मूला क्या है? वही सेम सब्जेक्ट से आई जो हमने प्रेजेंट के स्टार्ट में पढ़े थे. आई के साथ एम, बी के साथ आर. आई एम एबल टू, we are able to, you are able to, they are able to, he is able to, she is able to, it is able to, right? So these are the simple ones which we have practiced, and now we're moving. Now there are some example sentences with us जो मैं आप सबसे चाहूंगी कि इनको थोड़ा सा पढ़े ताकि आप लोगों को कंपैरिजन और उसकी वो पता चले. ठीक है, ठीक है. तो इकरा प्लीज, इकरा स्टार्टिंग 3 आप पढ़ेंगे और ईशा फिर आप पढ़ेंगी लास्ट के 3. जी. Okay, ma'am. I can sing Tamil songs well, and I am able to sing English songs. We देखिए can अभी dance, लिसन. अब देखिए ये तमिल सॉन्ग्स जो है ये क्या है? एक जर्नल एबिलिटी को शो कर रहे हैं. इसी का कंपैरिजन हमने एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के साथ किया. ठीक है, इंग्लिश सॉन्ग्स के साथ. आगे चलिए. yes, ma'am. We can dance, but she is able to dance Latin beautifully. ओके, Sarani can cook SL food, and व्हाट इज also दिस एसएल she फूड? is मैंने लास्ट able क्लास to में बताया था इकरा. व्हाट इज दिस एसएल फूड? आई हैव टोल्ड यू दिस एब्रिविएशन इन द लास्ट क्लास. वर यू प्रेजेंट इन द लास्ट क्लास? yes, ma'am. श्रीलंकन फूड. Uh, Sri Lankan food. आपको पता है ना हमारा जो मेन And हेडक्वार्टर all है
हमारा जो मेन हेडक्वार्टर है कॉलेज ऑफ इंग्लिश का, दैट्स इन श्रीलंका एंड देयर आर मल्टीपल ब्रांचेस देयर. सो ये जो हमारी जितनी स्लाइड्स वगैरह हैं वहां से तैयार होकर आती है, इसलिए समटाइम्स यू फाइंड सच काइंड ऑफ कंटेंट व्हिच इज नॉट मैचिंग आवर सोसाइटी, नॉट ऑलवेज बट समटाइम, राइट? ठीक है, तो श्रीलंकन फूड. Sri Lankan food, and she is able to make Western dishes. वेरी गुड, ओके, थैंक यू सो मच. इकरा जी, वो इकरा ने ईशा. ईशा डियर, लास्ट 2 सेंटेंसेस आप पढ़ेंगी हमारे लिए. Nathan and Kamal can do the project, but Nathan is able to make a project records. नो नो, Everyone दो दो can- इधर. ईशा ईशा, एक तो प्रोजेक्ट के आगे आ लगाया जो कि मौजूद नहीं था, और फिर रिपोर्ट्स को रिकॉर्ड्स पढ़ दिया. नहीं रिपोर्ट्स मैम. दोबारा पढ़िए सेंटेंस जी. Nathan and Kamal can do the project, but Nathan is able to make project reports. वेरी गुड, ओके. Everyone can attend online classes, but Oxford students are able to use the language. ठीक है, कैसे हो रहा है? हम एक सिंपल बात कर रहे हैं, जर्नल बात कर रहे हैं, और साथ में ही एक स्पेसिफिक बात कर रहे हैं. तो इसलिए हम दोनों में कैन, हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि वी कैन डांस बट शी कैन डांस, वी कैन डांस बट शी कैन डांस लैटिन ब्यूटीफुली. जब दो चीजों का कंपैरिजन आएगा, एक जर्नल होगी, एक स्पेसिफिक होगी, तो एक में हम पहले वाले में कैन और दूसरे वाले में एबल टू का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, विद इज एमआर. Now there's a kind of activity in which we have to make the sentences out of this slide. So for this, I would like a Wajiha. Wajiha, please do the examples for us. Starting 4 आप करेंगी वजिया. नीचे एग्जाम्पल लिखी हुई है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट वाला जुमला है, सारा कैन मेक स्वीट्स बट शी कांट कुक वेल. ठीक है. जॉन कांट सिंग इंग्लिश सॉन्ग बट ही कैन सिंग तमिल सॉन्ग्स, राइट? चलिए. मैम इसका क्या मतलब है? मैक पुडिंग. पुडिंग इज द नेम ऑफ अ डिश जो आई थिंक वो दूध और अंडे से मिलके बनती है. आई डोंट लाइक इट बट यू सी, पुडिंग एक डिश का नाम है, स्वीट डिश का नाम है. मैम बस सिर्फ नाम लगाना है और कांट. जी जी जी, पहले उसमें आपने एक्शन को करना है. जैसे देखिए ना, शुरू वाले में आपने शो किया. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लगा दिया आलिया. आलिया कैन मेक पुडिंग बट शी कांट मेक कस्टर्ड. ठीक है. ओके मैम. जी. मरियम मेक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. एक सेकेंड, आपने क्या कहा? कैन कहाँ गया? Mariam can जी. make a PowerPoint presentation, but But can't. इंग्लिश नहीं बोल सकती लेकिन वो. But she can't speak English. वेरी गुड, वेरी गुड. चले, एक और ये पुडिंग वाला जरा बनाइएगा. My mother can make pudding, but my sister can't. ठीक है, माय सिस्टर कांट. ओके ओके, ठीक है, फुली गुड गुड. ओके जी. नाउ वी हैव गॉट, आज मिसेस यास्मीन इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास. ठीक है जी. वी हैव गॉट इकरा. इकरा, ये दो आप बनाएंगी, डाइव वाला और स्टे वाला. क्विक क्विक. Okay, ma'am. She can dive into deep sea, but she can't dive into river. वेरी गुड, ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट. Okay. She stay alone in cemeteries. Cemeteries mean, ma'am? कब्रिस्तान, अ प्लेस टू लिव क्वाइट, Okay, खामोशी, कब्रिस्तान. और उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं. जी इकरा, सेंटेंस Okay. बनाइए. But okay, she stay alone in cemeteries, but she can't stay in group. ओके, वेरी गुड. ओके, नाउ ईशा, लास्ट 2 सेंटेंसेस आप बनाएंगे. Sarah make a handicraft. एक्सक्यूज मी अगेन. ईशा, लाउडली बोलिएगा. Sarah make handicraft. कैन कहाँ गया मैडम? कैन पढ़ रहे हैं, कैन को तो लाइए. मैं, आपने मेहमान खुसूसी को एक कमरे से बाहर निकाल दिया. Sarah make handicraft. सारा कैन मेक हैंडीक्राफ्ट्स.
Sarah can make handicraft, but can't uh, but can't copyright. But can't copy. Copyright. Okay. Copper card. Okay. 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 Now, okay. Next, last वाला. फ्लर्ट मतलब होता है कि लड़कियों को बेवकूफ बनाना, ये बॉयज को लोगों से बहुत ही ज्यादा प्यार से बात करना, ठीक है ना, उनको बेवकूफ बनाना। फ्लर्ट, फ्लर्टिंग सुना होगा आपने। सारा नहीं नहीं, ठीक है, बॉयज भी लिखा है, सारा आप बोल सकती हैं। Sarah can flirt with girls. क्या हो गया? सारा है तो बॉयज के साथ फ्लर्ट करेंगी ना, गर्ल्स के साथ क्यों फ्लर्ट करेंगी? Sarah flirt with girls. Sarah can flirt with boys, but she can't. मैम इसका समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ओके, आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे जैसे अली कैन फ्लर्ट विद गर्ल्स बट ही कांट स्पीक द ट्रूथ, कुछ भी बोल सकती है आप। आपको मैंने आपसे कहा है कि लैंग्वेज जब आप बोल रही हो तो डोंट फोकस ऑन द कंटेंट, आप ये फोकस करें आपकी फ्लुएंसी और वर्ड की प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। अगर अभी इस डिटेल में गई कि मतलब क्या निकल रहा है तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। Here are some examples in front of us. Let's practice. Like, what can you do as a boy or a girl? आप abilities बताने। लड़के क्या क्या कर सकते हैं? बॉयज कैन लिफ्ट हैवी वेट, दे कैन गो आउट एट नाइट, बट गर्ल्स कांट। ओके, तो आप कंपैरिजन में बहुत सारी चीजें इस पे डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट कैन यू डू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश नॉलेज? आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? यू कैन यू सी speak to yourself, you can do a lot of you can go online to study more, you can improve your English by speaking in front of the mirror, you can boost your vocabulary by learning videos, informative videos related to that, ठीक है। तो इसमें आपने क्या शो करना है? what can't a girl or a boy do? ऐसी चीज जो लड़का और लड़की या लड़का या लड़की नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स के लिए बहुत सारी हमारे पास वो है, इस तरह बॉयज की भी कुछ लिमिट्स हैं, ठीक है। तो यू कैन डिस्कस दोज इन दैट। व्हाट कैन यू डू इफ यू गेट अ सुपर पावर? अगर आपके पास एक सुपर पावर आ गई तो आप क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल इनविजिबिलिटी आ गई जी। मुकद्दस, मुकद्दस, इफ आई गिव यू द पावर ऑफ इनविजिबिलिटी, व्हाट विल यू डू? व्हाट कैन यू डू? आई मस्ट से, क्या क्या कर सकती हो तुम? अगर आप किसी को दिखाई ना दें तो मुकद्दस आप क्या क्या कर सकती हैं? हम समझ नहीं आ मिस्टर इंडिया नहीं देखी मुकद्दस आपने? देखिए मिस इंडिया नहीं। फिल्म। ओहो, ओहो भाई, मुझे बताएं किसने मिस इंडिया देखी है? मिस्टर इंडिया किसने देखी है? चैट बॉक्स में बताओ मुझे किसने देखी है भाई, ये अपना हाथ रेस करें। ओके भाई, कौन है ये? ईशा ने देखी है, वजिया ने देखी है। तो वजिया, अगर आपको सुपर पावर मिल जाए तो आप क्या करेंगे इनविजिबिलिटी की, जैसे उसमें अनिल कपूर की थी? व्हाट कैन यू डू? क्या क्या कर सकेंगी आप? मैम मूवी तो देखी है लेकिन ऐसे अच्छा, ओके, चलो थिंक फॉर द आंसर। ओके, हम इंशाल्लाह ताला किसी और क्लास में आपसे स्कोर करेंगे। ओके, ठीक है जी, समझ में आया, ठीक है। कैन आपकी करने की, किसी काम को करने की काबिलियत बताता है। ओके, नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस, कैन यू हियर मी? ठीक है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक? व्हाट कैन यू डू टू मेक योरसेल्फ फील हैप्पी? कैन यू ड्राइव? ठीक है, कैन यू रिमेम्बर व्हाट वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास? ये सब एबिलिटीज की बात हो रही है। क्या आप मुझे सुन सकती हो? आप कितनी जबानें बोल सकते हो? आप खुश रहने के लिए क्या कर सकती हो? क्या आप गाड़ी चला सकती हो? क्या आपको याद है कि आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? क्या आप मेरा एक फेवर कर सकती हो? आई एम लुकिंग फॉर अ पर्सन टू हेल्प मी प्रैक्टिस इंग्लिश, कैन यू हेल्प मी? मैं चाह रही हूँ कि कोई मुझसे इंग्लिश में बात करे ताकि मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए, तो क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? कर सकती हैं का वर्ड जो उर्दू में आ रहा है, ये बेसिकली कैन को शो कर है। नाउ, अब हमने क्या बात की? अभी तक हमने स्लाइड्स में कैन की एबिलिटी को पढ़ा दो तरीके से। एक हमने पढ़ा कि अगर कैन किसी की काबिलियत ये प्रेजेंट में था, ठीक है। अगर दो चीजों का हम अगर जर्नल एबिलिटी है तो हम उसके लिए कैन यूज करें, और अगर स्पेसिफिक एबिलिटी है तो हम एबल टू यूज करें विद इज एम आर इन प्रेजेंट। अब हम आ जाते हैं पास्ट में कोई जर्नल एबिलिटी अगर हमें बतानी है कि यार मैं बहुत तेज दौड़ती थी,
मैं तो फर अंग्रेजी बोलती थी, तो उसके लिए फिर हम कैन नहीं बल्कि उसका पास्ट टेंस कुड यूज करेंगे. सेम यूजेज है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. But this time we are talking about the journal ability in the past. Remember this. I could run fast. He could sing Tamil songs. They could play football. I couldn't run fast. मैं बचपन में भी अच्छा नहीं दौड़ सकती थी, ठीक है. He couldn't sing English songs. वो इंग्लिश के सॉन्ग्स बचपन में भी नहीं गा सकती. They couldn't play volleyball. वो वॉलीबॉल बचपन में भी या पहले नहीं खेल सकती थी. पास्ट की बात हो रही है. और इसको जब आप सेंटेंस में कोई क्वेश्चन में बनाएंगे, देन यू से could you run fast? Could he sing Tamil songs? Could they play football? Right? So journal ability in the past is shown by could. Now, there are some example sentences in front of us, like for example, Bill Gates could become the wealthiest person in the world. Okay? We could control COVID deaths in Sri Lanka in 2020. People couldn't adopt to the situation during the COVID pandemic. Pandemic का मतलब समझते हैं, जो आपका वो होता है फैली हुई चीज जिसको होती है कोई चीज जिसे आप रोक नहीं सके. ये कोविड जो था ये बेसिकली एक पेंडेमिक था, राइट. आई कुडंट स्विम व्हेन आई वाज यंग. ही कुडंट गेट अ प्रमोशन लास्ट ईयर. सब देखिए यस्टरडे की बात हो रही है. लास्ट ईयर व्हेन आई वाज यंग, यस्टरडे, ठीक है, इन 2020. ओके, सो कुड यू सबमिट योर थीसिस यस्टरडे? I could escape from the child. I could escape from the child abuse. Could Sri Lanka win the ICC matches in the past years? In the past, when I was young, in my childhood, at the age of 30, in 2023, all these are talking about the past. और इसके लिए हम use करेंगे could. Now, same specific ability. देखिए ये बहुत इजी चीज है, अगर आप इसको करने की कोशिश करें. हम can किस लिए यूज कर रहे हैं? For journal ability in present. उसी का past tense could है for journal ability in past. Similarly, हम journal ability in present के लिए क्या यूज करें? Able to with is am are. Similarly, हम specific ability के लिए past में क्या यूज करेंगे? वही able to, लेकिन this time we will not use is am are, we will use was and were. Simple. Okay. For example, subject plus was and were plus able to plus base verb. I was able to run fast. She was able to speak Japanese. We were able to study at nights. I was not able to jump. Negative. He wasn't able to speak Mandarin. They weren't able to study at nights. Negative, right? Again, when we are going towards the question, what we will do? वर पहले लगाएंगे सब्जेक्ट से. यहाँ पे यू सब्जेक्ट है तो वर इससे पहले. यहाँ पे ही सब्जेक्ट है तो वॉज उससे पहले. या दे तो उससे पहले वर. Were you able to swim fast? Was he able to fly to India tonight? Were they able to play the final match? Okay. Again, I'm repeating past or present. हमारे पास दो टाइप के टाइम रेंजेस हैं. If you want to use talk about some journal ability in present, you will use can. But if you want to talk about journal ability in the past, you will use could. Similarly, if you want to talk about a specific ability in the present, you will use able to with is mr. And on the other hand, if you want to talk about specific ability in past, then you will use able to with was and were. Simple. और नेगेटिव इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव का रूल सेम है. नेगेटिव में फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा देंगे तो जुमला नेगेटिव बन जाएगा. और जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो सब फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आप सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे तो वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा. इट्स वेरी सिंपल. ओके. Then we have got, you see this, इन्होंने journal और specific ability का comparison किया है. So for this activity, I want two people. ठीक है. एक हम मुकद्दस को ले लेते हैं, ठीक है, और एक हम ले लेते हैं मुकद्दस के अलावा हम ईशा को ले लेते हैं. ठीक है. ईशा, आप जो है वॉज और वर वाले वो करेंगी, और जो क्या नाम है मुकद्दस, आप जो जर्नल एबिलिटी कुड वाले करेंगी. ठीक है. चलें, स्टार्ट नाउ. He could speak English in his childhood. He was able to deliver speech in English on the competition day. Very good. I could operate computer in past days. I was able to repair my computer the day before yesterday. The government could prevent COVID spreading last year. The government was able to control COVID that rate in 2020. And you can Prashant. Prashant couldn't act well in his movie. Pooja wasn't able to perform well in Ravan drama. Ravana drama. Our government couldn't manage the economy of our country. Our people weren't able to buy sugar and milk powder in past day.
ओके ओके, देखिए इस एक्टिविटी कराने को एक सिंपल इसकी वजह थी। सबसे पहले आप ये देखें, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जर्नल उसकी, क्या कि भाई वो बचपन में इंग्लिश नहीं बोल सकता था, ही कुडंट स्पीक इंग्लिश इन हिज चाइल्डहुड। लेकिन यहाँ पे हम एक खास कंपटीशन दिन की बात कर रहे हैं कि उस दिन जाके वो तकरीर इंग्लिश में नहीं कर पाया या कर पाया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये स्पेसिफिक एबिलिटी हो गई, और ये क्या हो गई, जनरल है। सिमिलरली मैंने कहा कि मैं कंप्यूटर नहीं चला सकती थी, लेकिन अब मैंने कहा कि मैं कंप्यूटर को रिपेयर कर सकती हूँ, ठीक है ना, आई वॉज एबल टू रिपेयर, मैंने कर लिया। अब ये एक स्पेसिफिक एबिलिटी है, कंप्यूटर ऑपरेट करना एक जनरल एबिलिटी है, सबको ही आता है कंप्यूटर चलाना, लेकिन उसको रिपेयर करना एक स्पेसिफिक एबिलिटी है। सिमिलरली गवर्नमेंट कोविड के प्राइवेट को जो स्प्रेड था, स्प्रेड मतलब होता है फैलना, ठीक है, स्प्रेडिंग को लास्ट ईयर तक कंट्रोल कर सकती थी, ठीक है। और या हम एक स्पेसिफिक डेथ रेट के साथ, ये सन के साथ बात करें कि द गवर्नमेंट वाज एबल टू कंट्रोल कोविड डेथ रेट इन 2020। अब यहाँ पे हम खास स्पेसिफिक हो गए, जर्नल का मतलब होता है आम, स्पेसिफिक का मतलब होता है खास, ठीक है। इसी तरह प्रशांत की बात हो रही है कि भाई वो नॉर्मली अपनी अच्छी एक्टिंग नहीं करता यार, उसको काम करना आता ही नहीं है मूवियों में, ठीक है, अपनी मूवियों में वो अच्छा नहीं कर सकता। लेकिन पूजा की जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं एक खास ड्रामे का नाम ले रही हूँ कि रवाना ड्रामे में पूजा की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं थी। तो यू आर गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द स्पेसिफिक एंड द जर्नल एबिलिटी विच वी आर टॉकिंग। ओके, अब वो गवर्नमेंट कुडंट मैनेज द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री, इकोनॉमी को मैनेज नहीं कर सकती, आवर पीपल वांट एबल टू बाय शुगर। ये देखिए स्पेसिफिक, इकोनॉमी एक ब्रॉड टर्म है कि भाई इकोनॉमी कंट्रोल नहीं हो रही, हर चीज महंगी है, या अफरा तफरी है, ये अनएम्प्लॉयमेंट है, देयर आर लॉट ऑफ रीजन। लेकिन जब मैं खास चीज का नाम ले रही हूँ कि शुगर और मिल्क पाउडर, वो हम नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये स्पेसिफिक एबिलिटी हो गई। बस आपको इस चीज को जहन में रखना है, ठीक है, कि एबल टू हम स्पेसिफिक है उसके लिए बात करते हैं, प्रेजेंट में होगा तो इज एम आर के साथ, और अगर पास्ट में होगा तो वॉज और वर्ड के साथ। सिमिलरली कैन जो है वो जर्नल एबिलिटी प्रेजेंट में होती है, और कुड उसका पास्ट टेंस है तो पास्ट में, ठीक। अच्छा, एक और चीज है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एबिलिटीज, तो यहाँ पे फिर कंपैरिजन बहुत ज्यादा आता है। यार मैं बचपन में साइकिल चला सकती थी, लेकिन अब मुझे गाड़ी चलाना ही नहीं आती। मैं पहले जो है ना उर्दू इतनी अच्छी बोलती थी, लेकिन अब मैं इतनी अच्छी उर्दू नहीं बोलती हूँ। तो जब भी एबिलिटी की बात आएगी वहां पे कंपैरिजन आएगा, डू रिमेम्बर दिस थिंग, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब हमारे पास दो एक्टिविटीज है, इसके लिए मुझे दुआ एक आप हो जाए, ठीक है। और यहाँ से कौन, ईशा ने नहीं किया या इकरा ने नहीं किया, जिसने नहीं किया वो आ जाए दुआ के साथ प्लीज। अभी लास्ट में किसने किया था, इकरा ने किया था, ईशा ने किया था जी। कौन, Yes, ma'am. एक और ईशा आपने किया था या इकरा आपने किया था? ओके ठीक है, ठीक है, ईशा एंड दुआ। ईशा आप पास्ट पढ़ेंगी Yes, और ma'am. दुआ आप प्रेजेंट पढ़ेंगी, चलिए। मैम इकरा आप ही ने नहीं किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सॉरी, Yes, ठीक ma'am. है, मैं start करूँ? जी जी बिल्कुल। इकरा आपने पास्ट पढ़ना है और दुआ आपने प्रेजेंट पढ़ना है, Okay, क्विक। ma'am. Yes. I could ride a bicycle in my childhood. जी दुआ, Now I can drive a car. वेरी गुड, जबरदस्त, नेक्स्ट। We couldn't speak English before a month. Now we can speak English a little. अ लिटिल, I could, A little. जी I could join you for the party last week. Today I can't come with you. I couldn't control my feeling when my father first went abroad. Now I can say without him. स्टे विदाउट हिम, उनके बगैर रह सकती हूँ, Yes. ओके। Kebilan couldn't travel when he was young. Now he can travel around Sri Lanka. वेरी गुड, ठीक है, समझ में आया किस तरह हमने कंपैरिजन किस किस का, पास्ट और प्रेजेंट का, ठीक है। आप इसको रिवर्स भी कर सकती हैं, दोनों करेक्ट है। नाउ देयर इज अ स्मॉल काइंड ऑफ एक्टिविटी फॉर ऑल ऑफ यू। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई कुड राइड अ बाइसाइकिल, बट नाउ आई कांट ड्राइव अ कार। आप कंपैरिजन में, ठीक है। 5 years ago, 5 साल पहले, I couldn't speak a single word of English, but now I can speak very fluent English.
ठीक है, इन द पास्ट आई कुडंट earn a lot of money, but now I can earn a lot of money. ठीक है, at the age of 20 he couldn't go to any other city, but now he can go to every city. In 2022 we could buy a new car, but now we can't buy a new car, okay, or new house. तो अब इस तरह इसको कंपैरिजन में चेंज कर करके एक ही एक्टिविटी को बोरिंग नहीं बनाए, just keep on adding up in the vocabulary and just shaping the vocabulary according to your need. अपने जहन में एक्टिविटी को खुद से चेंज करें, ठीक है जी, ये आपका टैलेंट होगा। अच्छा, अब हमने पास्ट की बात कर ली, अब हमने प्रेजेंट की बात कर ली, तो अब फ्यूचर को तो नाराज नहीं करना। तो फ्यूचर में एबिलिटी कैसे होती है, सेम वही पैटर्न है, एबल टू, बट दिस टाइम विद विल बी। शेल बी का ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि शेल सिर्फ आई और बी के साथ आता था, और वो भी मॉडर्न इंग्लिश में, कि अगर आप उसके साथ भी विल लगा ले तो दे आर ओके विद इट। सो वी आर जस्ट स्टार्टिंग द ऑप्शन ऑफ विल बी विद एबल टू फॉर to express an ability in the future, right? So simple वही है, subject plus will be able to plus first form of the verb. अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो subject plus won't मैंने आपको पहले बताया will be का short form है, ठीक है, won't sorry will not का short form है, ठीक है, won't be will not be is equal able to plus base form यानी first form. Then we have got question, will को पहले ले आएंगे, subject और be able to। देखिए will be में दो हेल्पिंग वर्ब है आपके पास, will और be, ठीक है, तो जब आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आप be को कभी आगे नहीं ले जाएंगे, हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब पे काम होता है। चाहे नॉट लगाना हो वो भी आप will के बाद लगाएंगे, और अगर इंट्रोगेटिव बनाना तब भी will को सिर्फ ऊपर ले जाएंगे, be को नहीं ले जाएंगे, ठीक है, तो डू रिमेंबर दिस थिंग। Okay, so if I talk about the affirmative sentence to show an ability in future, I must say, I will be able to buy a car next year. She will be able to speak Japanese in the future. She will be able to speak English with others. Okay. Negative mein, I won't be able to play cricket tomorrow. He won't be able to speak Mandarin. They won't be able to go out next week. Or agar main interrogative ki baat karu, will you be able to sing rap songs? Will he be able to speak English? Will they be able to win the finals, right? So these are the usage of or expression of ability in future by using will be. Okay, will be able. Okay, there are some more examples, and for this example I would like Wajiha. Wajiha, please read these examples for us. Speak louder. You will be able to enter the university. You will be able to. He will be able to get the next fight. He. No, it's not I. ये लाइन डली हुई है बेसिकली, स्लैश है। लाइक आप इसको नेगेटिव में भी बोल सकती हैं, इंट्रोगेटिव में भी बोल सकती हैं, आप ये शॉर्ट फॉर्म्स के साथ लिखे हुए, he will be, कॉन्ट्रैक्शंस के साथ यूज हुए हैं, ठीक है, दे आर द सेम। Okay. We will be able to attend the wedding next month. She won't be able to help you. They won't be able to pass the exam without studying. John won't be able to come to Sri Lanka next year. वेरी गुड, एब्सोल्युटली गुड, ठीक है, तो ये फ्यूचर में एबिलिटी का यूज हमारा था, ये हमने कर लिया। नाउ वी हैव गॉट विल नेवर बी एबल। ये बहुत अच्छा सा एक फ्रेज है, कभी भी नहीं हो सकता, जो चीज हम कहते हैं ना कभी भी, आई विल नेवर बी एबल टू मैरी हर, मैं कभी भी उससे शादी नहीं कर सकूंगा, फ्यूचर है इसलिए कर सकूंगा। यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड अ जॉब, तुम कभी भी एक नौकरी नहीं ढूंढ सकोगे। ही विल नेवर बी एबल टू गेट द नेक्स्ट फ्लाइट, वो नेक्स्ट फ्लाइट ले ही नहीं सकता, वो कभी भी नेक्स्ट फ्लाइट नहीं ले सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सारे टिकट्स बुक हो गए आपके दोस्त के, और आपका दोस्त कह रहे हैं यार मैं तो नेक्स्ट फ्लाइट से जापान जा रहा हूँ, आप बोलेंगे यू विल नेवर बी एबल टू गेट द नेक्स्ट फ्लाइट, तुम कभी भी नेक्स्ट फ्लाइट नहीं ले सकते हो क्योंकि तमाम जो टिकट्स हैं वो सेल आउट हो चुके हैं। शी विल नेवर बी एबल टू ज्वाइन यू फॉर द पार्टी बिकॉज हर पेरेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, आपकी दोस्त के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है, और आपकी दूसरी दोस्त ने कहा यार समीना तो जरूर आएगी पार्टी में, तो आप उसको कह सकते हैं नो, शी विल नेवर बी एबल टू ज्वाइन अस फॉर द पार्टी, वो कभी भी हमारे पास नहीं आ सकेगी पार्टी ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज हर पेरेंट्स हैव फॉरबिडन हर, उसके पेरेंट्स ने उसको मना किया होगा, ठीक है। वी विल नेवर बी एबल टू अटेंड द फ्यूनरल, फ्यूनरल कहते हैं जैसे हमारे यहाँ तो हम उसको नमाज जनाजा या जो
जो भी होता है, रसूमात होती हैं जो जब किसी का इंतकाल हो जाता है, तो इंग्लिश या जो इंग्लिश पीपल है दे कॉल इट फ्यूनरल, राइट, जिसमें वो काले कपड़े पहनते हैं और जो उसमें वो होता है, ठीक है। दे विल नेवर बी एबल टू escape फ्रॉम द पनिशमेंट, वो कभी भी सजा से बच नहीं पाएंगे, ठीक है। सो विल नेवर बी इज ऑल्सो वेरी गुड वर्ड, राइट। Now here is a small kind of activity for all of you in which आपने I will be able to, I won't be able to, I will never be able to, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबने एक एक सेंटेंस बनाना है और एक मियाद भी देनी है साथ में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बना के दिखाती हूँ। I will be able to build a house next year. I won't be able to find a job in the future. I will never be able to live in Australia. Right? तो इस तरह करके आप सबने एक एक बनाना है, क्विक क्विक करके बनाएंगे, ठीक है। आई एम स्टार्टिंग विद मुकद्दस, प्लीज मुकद्दस। Yes. I won't be able to find a job next in the future. जी जी बोलिए। in a couple of months। Okay. In the आप इन द फ्यूचर भी बोल सकती है, इन द कपल मंथ्स भी बोल सकती है, ठीक है। इकरा जी, इकरा। Yes, ma'am. I will be able to build a house. I won't be able to live in Australia in. एक्सक्यूज मी मैडम इकरा, आपने Yes, ईयर नहीं ma'am. बताया। आई विल बी एबल टू बिल्ड अ हाउस कितने, 3 साल में, अगले साल, फ्यूचर में, Okay. 2 महीने में, 4 महीने में? Okay, ma'am. I will जल्दी। be able to build a house in next year. I वेरी won't गुड। be able to buy a car in the future. I will ओके। never be able to complete the degree ओके वेरी गुड। next ईशा year. Next. बेहतरीन। ओके ईशा। I will able I will be able to build a house next year. ओके वेरी गुड। I won't be able to live in Australia in 3 years. ओके I will never be able to start my own business in the future. वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू ईशा। ओके जी वजीहा। I will be able to buy a new furniture next month. वेरी गुड। I won't be able to um, find a job. ओके I will never be able to start my own business. आखिर में आपने ड्यूरेशन देनी है, इन अ कपल ऑफ मंथ्स, आफ्टर फ्यू डेज, नेक्स्ट ईयर, जो भी वट एवर, बट डू गिव द टाइम लिमिट। क्योंकि जब आप कहते हैं ना कि यार यार मैं कभी भी जिंदगी में जो है ना यार मैं ये डॉक्टर नहीं बन सकूंगी, या मैं जब मुझे लगता है मैं 5 साल तक मैं शादी नहीं कर सकूंगी, ओके, तो आप क्या कहते हैं, लिमिट देते हैं, ठीक है। ओके I will never be able to start my own business this year. ओके ओके दुआ। थैंक यू वजिया। वजिया दुआ प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ बच्चा, जल्दी से बनाइए सेंटेंस। अच्छा दुआ आप एक काम कर सकती है बेटा, एक ही चीज चूज करें एंड देन उसी को विल बी एबल, वोंट बी एबल और विल नेवर बी एबल के साथ बनाए। फॉर एग्जांपल आप इस तरह बोल सकती हैं, आई विल बी एबल टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट ईयर, आई वोंट बी एबल टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट ईयर, आई विल नेवर बी एबल टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट ईयर, ठीक है। Yes, ma'am. जी जी I will be able to buy a car next year. वेरी I गुड। won't be able to buy a in 2 years. बाय अ कार इन 2 years। In 2 years, I will never be able to buy a car in the future. Okay, thank you so much Dua। Okay ji, now I'm moving ahead। Let's practice। After the completion of this course what will you be able to do? बहुत अच्छा सवाल है। आप कह सकते हैं कि I will be able to speak simple sentence, I will be able to understand native English, I will be able to use advanced vocabulary, I will be able to use a lot of phrases in my conversation, I'll be able to speak in front of my friends, ठीक है। तो कोर्स कंप्लीशन के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपनी काबिलियत आप किससे, I will be able से शो करें। If you can become the president of Pakistan, what will you be able to do? I will be able to correct the education system. I will be able to
stop corruption. I will be able to work day and night for the prosperity of Pakistan. I will be able to do this, that. अभी तो I'm sounding like a politician कि मैं ये कर सकती हूँ, बट मैं करूंगी कुछ भी नहीं. ठीक है. Okay. What will you be able to do next year? Next year तक आप क्या कर सकती हैं? I will be able to start my own school. I will be able to start my own business. I will be able to run my own business virtually on या फिर online. ठीक है. What will people be able to do in 5 years? People will be able to find more better jobs in 5 years. People will be able to control inflation in 5 years. People will be able to understand the economy system, or whatever जो भी आप बोलना चाहे. ठीक है. ये बहुत बेहतरीन स्लाइड है. प्लीज आफ्टर द क्लास अपने आप को, देखिए क्लास आपकी तकरीबन होती है 1.5 घंटे की. इसके अलावा अगर आप 1 घंटा भी अपने आप को तन्हाई में इन सब स्लाइड्स को, देखिए इतनी सहूलत है, आपको कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है. आप एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर फोन. अपनी खुद रिकॉर्डिंग करें, अपने सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं. ठीक है. तो आजकल ये वही वाली बात है कि आजकल के दौर में कोई अगर पढ़ना चाहता है ना तो उसको कोई रोक नहीं सकता, और अगर कोई नहीं पढ़ना चाहता तो उसको कोई पढ़ा नहीं सकता. तो बराए मेहरबानी अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिए. ये छोटे देखने में बहुत सिंपल चीजें, लेकिन इसके इतने माहिर हो जाइए, इतने माहिर हो जाइए कि आपको लगे ये बोलते हुए बिल्कुल आपको वही ना हो. ठीक है. स्पॉन्टेनियस हो जाए. अच्छा, अब ये कंपैरिजन चार्ट है हमारे पास कि प्रेजेंट इनएबिलिटी के लिए हम आई कांट स्पीक इंग्लिश नाउ, आई कांट बाय एन एक्सपेंसिव बाइक, आई कांट टेक अ गुड डिसीजन राइट नाउ, दैट्स बेबी कांट वॉक नाउ, आई कांट एंजॉय माय लाइफ. ठीक है. ये क्या प्रेजेंट की इनएबिलिटीज है. फ्यूचर की इनएबिलिटीज को हम बट से कंपेयर करेंगे. I can't speak English now, but I will be able to speak English at the end of this course. देख रहे हैं आप कैसे सेंटेंस को हमने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया. हमने पहले एक पार्ट सीखा कि कैन को प्रेजेंट एबिलिटी के लिए या इनएबिलिटी के लिए कैसे यूज करते हैं. हमने फ्यूचर एबिलिटी और फ्यूचर इनएबिलिटी के लिए यूज सीखा, और टाइम को ऐड करना सीखा. यही चीज है. दिस इज नॉर्मली सेड दैट अगर आपको एक एलिफेंट भी खाना है ना तो यू विल स्टार्ट विद अ सिंगल बाइट. आप पूरा हाथी मुंह में नहीं ले लेंगे. So the first step or the activation energy is the most important. Just make a routine of yourself कि मैंने क्लास में या तो क्लास के फौरन बाद खाना वगैरह करके फारिग होकर फौरन बैठ जाया करें 9:30 बजे से 10 बजे तक. कितना हो, इट्स माय मी टाइम विद इंग्लिश, मी एंड माय इंग्लिश. ठीक है. और इन सब स्लाइड्स को कम से कम 2-3 दफा रिपीटेडली लाउडली कमरा बंद करके आराम से पढ़ें जहां आपको कोई ना सुन रहा हो. जब आपकी हेजिटेशन निकल जाएगी तो ऑटोमेटिकली फिर आप लोगों के सामने इन सेंटेंसेस को यूज करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. आई कांट बाय एन एक्सपेंसिव कार बट आई एम एबल टू बाय अ कार सून. बाइक. ठीक है. मैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बाइक नहीं खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं एक अच्छी गाड़ी बहुत जल्द कर लूंगा. आई कांट टेक अ गुड डिसीजन राइट नाउ. मैं अभी तो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ अच्छा, बट आई विल बी एबल टू टेक द राइट डिसीजन. लेकिन मैं जरूर एक अच्छा डिसीजन लूंगा, सही डिसीजन कब, इन द फ्यूचर. दैट बेबी कांट वॉक. बेबी अभी वॉक नहीं कर सकती, बट शी विल बी एबल टू वॉक आफ्टर फ्यू मंथ्स. कुछ महीने बाद बच्ची का चलने लग जाएगी. ठीक है. आई कांट एंजॉय माई लाइफ. मैं अपनी लाइफ अभी एंजॉय नहीं कर सकती, बट आई विल बी एबल टू वट एवर आई वॉन्ट इन कपल्स ऑफ ईयर. लेकिन अगर मैं मेहनत करती रही और जोश जज्बे के साथ लगी रही तो कुछ कपल ऑफ years, couple of months का मतलब होता है you are not exact about the number, but you are saying कि कुछ in a couple of years, in a couple of months, in a couple of days, I will come to visit you in a couple of days. मैं कुछ ही दिनों में आपको आके आपसे मुलाकात करूंगी. ठीक है. Now then we have got an activity. अच्छा, हमारे पास अभी 5 कैंडिडेट्स हैं, तो मैं चाहूंगी कि सब एक एक वो करें. ठीक है. तो आई एम स्टार्टिंग विद मुकद्दस. मुकद्दस एक्टिविटी कीजिए प्लीज. Yes. Oh my goodness. Now I can drive a car, but in few months, no, Mr. Yes, देखो, now I can drive a car, but in few months I will be flying an aeroplane. मैंने आपसे क्या कहा है, डोंट बिकम द स्लेव ऑफ द कॉन्टेक्स्ट. कुछ भी बोले, बट इस वक्त आपका जो बेसिक मकसद है ना वो अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस करना है. सेंसिबिलिटी तो आप बाद में भी पैदा कर लेंगे. तो अभी आपका मकसद है जुमले बोला. एक और कीजिएगा मुकद्दस. नाउ ही कांट डैश बट डैश नेक्स्ट ईयर. now he can't job, but he will able to find a job next year. वेरी गुड. ओके जी. ओके, नेक्स्ट वी गॉट इकरा. इकरा नंबर 3 कीजिएगा प्लीज.
mm, mm. We can read, but We can we read, can you see, you can say we can read a book, but we won't be able to write a book in future. यानी हम किताब पढ़ सकते हैं पर किताब लिख नहीं पाएंगे फ्यूचर में, ठीक है? yes, ठीक है, yes. फोर्थ कीजिए इकरा। यहाँ नहीं Ali can swim, but okay. Alia can swim, but she will never be able to डांस। fly. Dance. Yes. okay, okay, लास्ट भी कीजिए इकरा। Now we can dash, but our future generation will be able to dash. Okay. Now we can जी, now we can go to the moon, but our future generation will be going to the Mars. Okay, okay, thank you so much, Ms. Ikra. Okay, so now we are left with this. Is the speech. What is important in life, relation or money? I mean, why do we need money? What are relations? Do you need money or relation the most in the world? Okay, so it's a kind of a discussion or a speech in which you have to talk. And you can write down the speech, read it 4 or 5 times, and then in front of the mirror, you should try to speak it without looking at the page on which you've written it, right? So the topic is, what is important in life for you? आपके लिए क्या important है, relation या money? ठीक है, पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपके जो रिश्ते हैं, अल्लाह पाक ने जो आपको कीमती रिश्ते दिए हैं? अगर आपको कोई बोले आपको बहुत सारी दौलत दी जाएगी, लेकिन आप अपने पेरेंट्स से नहीं मिल सकते, अपने बहन भाइयों से नहीं मिल सकते, अपने हस्बैंड बच्चों से नहीं मिल सकते, तो क्या आप कभी एग्री करेंगी? ठीक है, if तो what is your idea? You can just discuss it in the duration of 2 to 3 minutes using these critical thinking questions. Why do we need money? हमें पैसे की जरूरत होती क्यों है? ठीक है, what are relationships? Relationships होते क्या है? Do we need money or relationships the most in the world? दुनिया में हमें relationships की ज्यादा जरूरत होती है या हमें पैसे की ज्यादा जरूरत होती है? ठीक है, तो it's a kind of a practice for you. You can do it at home, right? Now finally your homework. If you are given the seat of the Prime Minister of Pakistan, then what can you do to make your country better? Remember to use can, could, would, able to, is जो भी हमने आज पढ़ा है उसी के उसमें आपने इसको आंसर करना है. If you are given the seat of the Prime Minister of Pakistan, then what can you do to make country better? What could you do? What could you not do before that seat? आप इससे पहले क्या काम थे जो नहीं कर सकते थे और अब आप कर सकते हैं? ठीक है, what will you be able to do? आप क्या कर सकेंगे? What will you not be able to do? आप क्या नहीं कर सकेंगे? ठीक है, तो आपको छोटी सी एक कन्वर्सेशन बनानी है, छोटी सी एक वीडियो बनानी है, ठीक है? This video is for your benefit. I'm feeling like most of the students, they are taking the homework as a burden. You see, it is not burden. It is basically a creativity time for you. You all should sit and like do all these homeworks. They are definitely going to improve your English. That's my promise. अगर आप कीनली सुकून से पॉन्डरली इसको सोचें और होमवर्क्स को करें, तो देखिए आपको इंशाल्लाह ताला इन अ कपल ऑफ वीक्स यू विल स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट्स कि आपकी कैसे आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट होती है. जो वोकैबुलरी में कराती हूँ, ठीक है ना, उसको भी बहुत अच्छी तरह थॉरली करने की शुरू करें. अब मैं जैसे वोकैबुलरी थोड़ी सी आपको रिपीट कराती हूँ, ठीक है? ओके, सो जो हमने आज के वोकैबुलरी वर्ड्स किए थे, बिनाइन. बिनाइन मतलब नेक या अच्छा, ठीक है? डिलेमा, डिलेमा कश्मकश, ऐसी सिचुएशन जिसमें आप कोई डिसीजन ना ले पा रहा हूँ, ठीक है? एक्सूबिरेंट, एक्सूबिरेंट पुरजोश, खुश. एफेमेरल, एफेमेरल मतलब आर्जी, टेम्पररी. लाइफ इज एफेमेरल, वी शुड नॉट रन आफ्टर द मनी. हमें अच्छा देखिए, अब ये जो वर्ड है ना, एफेमेरेंट है, एक्सूबिरेंट है, डिलाइमा है, ये सब वर्ड्स आप अपनी जो लास्ट आपको जो होमवर्क दिया गया ना अपनी एबिलिटीज को शो करने का, और जब आप प्राइवेट प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो उस वक्त आप यूज कर सकते हैं. यू सी, फेम इज एम्फेमेरल. फेम यानी कि शोहरत जो है वो क्या है, आरजी है, ठीक है ना? तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड नॉट मिस यूज आवर डिजिग्नेशंस. हमें अपने उनका फायदा नहीं उठाना चाहिए, ठीक है? इलिसिट, निकालना, किसी को प्रोवोक करना, ठीक है? डिस्डेन, हकारत से देखना, ठीक है? आप ये कह सकते हैं कि आई विल नॉट बी
disdaining on people when I'll become the president or prime minister of Pakistan. Discern, don't. ठीक है, ये सब sentences को आप use कर सकती हैं. इनके individually भी आप sentences बना सकती हैं, ठीक है, and you can just practice them. Phrases time and again, बार बार, ठीक है ना. अगेन मेरी कोशिश होगी कि आप जो होमवर्क है ना उसको अपनी phrases और vocabulary से relate किया करें, ठीक है. I have heard many evil things about him. He is bad to the bones. ठीक है. Nerves of steel. Very very good phrase for usage in your. और jack of all trades की तो क्या ही बात है, तो आप मजाक में भी कह सकते हैं किसी को, अम्मी आप जो है ना अस्मा से ही सारा काम करा ले. She is the jack of all trades. यानी कि वो तो माहिर है हर चीज में, हर फन मोला उसी से करवा लीजिए, आप मुझसे क्यों कह रहे हैं. कभी हम बोलते हैं ना सरलों को, ठीक है. सो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, by the grace of Allah we finally completed the 12th day of our English marathon from College of English, batch number 4, 2024. And you see, by this we have reached the peak. ये मैं जो है ना इसको एक पहाड़ का एक सफर कहती हूँ. हम जो है ना अब नीचे से चले थे, क्लाइंब करना शुरू किया था हमने पहाड़ को, और हम पीक पे पहुंच गए थे. अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम उतरने का सफर शुरू कर रहे हैं, ठीक है जी. तो जी ईशा आप कुछ कहना चाह रही हैं? ईशा इज विलिंग टू से समथिंग. जी ईशा, जी ईशा, यू विलिंग टू से समथिंग ईशा? मैम आपने एक मैडरिन मैम कौन सी जबान है लैंग्वेज? मैंडरिन ये मुझे नहीं पता, बट इट इज अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान कौन सी है जी, तो आपको वो क्या कह रहे हैं, मैंडरिन ही देंगे. दिस इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है जी. मैम आपने एमडी एक एमडी लिखा था, उसके अंदर लिखा हुआ था आई विल बी एबल टू नीड द एमडी टुमारो. इसके एमडी की फुल फॉर्म क्या हुआ मैम? कौन से सेंटेंस में मुझे बताइएगा सर सेंटेंस. मैम दोबारा से. आई विल बी एबल टू नीड द एमडी टुमारो. देखिए एमडी जो है ना बेसिकली एमडी का वर्ड जो है ये किसी भी शॉर्ट फॉर्म को यूज करता है. इट डिपेंड अपॉन योर कॉन्टेक्स्ट. फॉर एग्जांपल आप इसको अगर आप हॉस्पिटल में तो यू कैन से मेडिकल डॉक्टर एमडी, लेकिन अगर आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में तो यू कैन से मैनेजिंग डायरेक्टर. ओके ओके मैम, ठीक है. आप तो वो काफी ये डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में और किस जगह पर है, ठीक है. सो थैंक यू. ओके डजंट मैटर. प्लीज डू प्रैक्टिस, और इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो आप सबसे फिर मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच.